joining us in today's webinar. My name is Richa Singh, Chairperson Global Connect, a non-profit organization. We are presenting a science event workshop. Let's do a little housekeeping before we get started. If you have any questions during the presentation, please type them into the chat box control panel. In that now during the presentation, we also have time for questions as well. Your active participation throughout the session. Right now we have everyone on mute. Noises that may distract you from listening to the speakers. If you want to say something, you can raise your hand. Actually, the continued efforts and the struggle for expanding the horizon of systematic knowledge created a need for driving and understanding the nature and events associated with it. This need led to the birth of what is known today as science. And today science has become an important subject. Besides events like cooking, water, electricity, mobile phones, makes us realize the presence of science in our everyday life. So focusing on this topic, and without any further ado, we'll turn the word to our expert. So our first presenter we have Dr. Harswarup Sharma, an ex-senior scientist, Bhabha Atomic Research. Presently, he is a professor in IIT Institute of Nuclear. He chaired DRDO Assessment for Promotion of Scientists in Chemistry. He awarded Silver by Hindi Vigyan Sahitya Parishad, Mumbai, for outstanding for the cause of management and communication science. His publications include 16 international journals, 54 conferences, and 3 PubMed reports. So welcome, sir, in our today's event. Our next presenter is Dr. Vikram Daga. He completed his BTech in Chemical Engineering from IIT Roorkee and did his PhD degree in 2011 from US. He is currently a scientist at a company called SABIC and involved in research and development of new plastics that are used in various applications like automotives, cell phones, etc. We welcome you, sir. Thank you. बच्चों, समस्याओं का हल निकालना चाहिए पर छात्र में एक वैज्ञानिक इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे अगले वक्ता हैं, वो हमारे शहर से हैं, दीपक शर्मा जी, मेरठ के पहले विज्ञान अध्यापक हैं जिन्हें विज्ञान को ग्लैमराइज करने का श्रेय जाता है, यानी विज्ञान को सुंदर बनाने का श्रेय जाता है। एशिया के ये पहले अध्यापक हैं जिन्हें यूरोपियन साइंस मीट में 2004 में मेरठ का सबसे पहला टेलीस्कोप लाया गया, वो इन्हीं के द्वारा लाया गया। परागमन के द्वारा पृथ्वी से सूरज की दूरी मापने वाले विश्व के ये पहले व्यक्ति बने। 2005 में एक छड़ की मदद से पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयोग भारत में पॉपुलर किया और अब हर हिस्से में इस प्रयोग को किया जा रहा है। बालकों में वास्तविक प्रोजेक्ट की टीम के रूप में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के रूप में मेरठ देश भर में इन्होंने पॉपुलर किया। अभी हाल ही में देश के 2 राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्हें प्रदान किए गए। पहला मिला इन्हें बच्चों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए और दूसरा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। हमारी तरफ से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में देश का पहला विज्ञान चैनल और विज्ञान पत्रिका करके सीखें तो ये चला अपना स्थान रखी है। सर, आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। So today I'm hosting with Mr. Abhishek Sharma, Secretary Global Social Connect. And we have today members of Global Social Connect family whose work in the team is always fruitful for us. We are joined by the students and teachers from Dewan Public School, Meerut, KK Inter College, Meerut, Government Girls Inter College, Surat. And apart from these, we have students, teachers, parents, mentors, even grandparents from all over the world. We welcome you all in today's show. Welcome all of you. So, without wasting a time, मैं अब hand over microphone to Mr. Abhishek Sharma. So please, continue. Thank you, Richa. पहले मैं ग्लोबल मेरी आवाज सबको आ रही है? पहले मैं ग्लोबल सोशल कनेक्ट की तरफ से
अपने तीनों जो गेस्ट हैं उनका जो है अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। उसके साथ ही मैं पहले सारे बच्चों का जो भारत के डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट कोने से, और बहुत से बच्चे तो मैं देख रहा हूँ भारत के बाहर के भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जो जिनकी रूट्स इंडिया के साथ कनेक्टेड है लेकिन वो भारत से बाहर हैं, तो वो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मैं उन सबका भी ग्लोबल सोशल कनेक्ट की तरफ से अभिवादन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ग्लोबल सोशल कनेक्ट ऋचा जी ने, मैंने और जो GSC के मेंबर्स हैं, हम लोगों ने जब बनाने की संकल्पना रखी, सोच को जब हमने रखा, तो हमारा सोचना था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पर हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, उन लोगों को श्रेष्ठ समाज के साथ कनेक्ट कर सके, जिससे कि वो अपने अनुभव को ऐसे लोगों को दे सके जिन लोगों को उन अनुभवों की आवश्यकता है, और उन अनुभवों से लाभान्वित होकर के वो आगे वो लोग प्रेरित हो सके और वो लोग समाज की सेवा में अपना बेहतर योगदान उन अनुभवों के आधार पर दे सके। तो उसी प्रक्रिया में, उसी क्रम में आज एक और कोशिश GSC की तरफ से हो रही है, और मैं गौरवान्वित भी हूँ GSC के सेक्रेटरी के रूप में कि मुझे ये मौका मिल रहा है, या मैं इस क्षण का मैं भी एक हिस्सेदार और भागीदार हूँ। तो आज जो हमारा विषय है, हमारा विषय, हम तकनीकी वैज्ञानिक चर्चा पर नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य और बच्चों को जोड़ने का और समाज के विभिन्न वर्ग को जोड़ने का हमारा उद्देश्य ये है। अगर हम इस कोविड के दौरान में भी देखें, चाहे पहले हम महत्व समझे या न समझे, पर इस कोविड के दौरान में देखें तो इस दुनिया को बचाने के लिए हर कोई विज्ञान की तरफ ही देख रहा है, विज्ञान से ही अपेक्षाएं कर रहा है कि वो इस दुनिया को शायद बचा ले। जिस तरीके की विपदा, आपदा इस दुनिया पर आई हुई है, तो उसको समाधान विज्ञान में ही दिखाई दे रहे हैं। आज अगर बच्चों की शिक्षा रुकती है, तो उस शिक्षा को कैसे दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा, इसके लिए भी लोग समाधान के लिए विज्ञान की तरफ ही देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था को किस तरह से एक नए स्वरूप में लाया जाए, अर्थव्यवस्था नए ढंग से आ सके और लोग वापस अपनी आर्थिक गतिविधियां कर सके, तो उसमें भी वो विज्ञान से कुछ नवाचारों को, कुछ इनोवेशंस को लाने की अपेक्षाएं कर रहा है कि वैज्ञानिक तरीकों से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में हमारे दैनिक जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो विज्ञान से अछूता हो। लेकिन अगर मैं भारतीय समाज में देखूं, तो भारतीय समाज में हम लोग विज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम घटनाओं को, क्या हम जो भी अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्या उनको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या हम उनको वैज्ञानिक नजरिए से देख रहे हैं? क्या हम उन बातों के पीछे के वैज्ञानिक पक्ष को समझ रहे हैं? उसको लेकर के एक वाद विवाद भारत में हमेशा रहा है। तो आज हमारी कोशिश, GSC के तहत हमारी कोशिश एक ऐसे समाधान की ओर बढ़ने की है, बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए प्रेरित करने की है। इसलिए हमारे जो तीनों ही गेस्ट हैं, वैसे तो वे अपने अपने विषयों के महारथी हैं और वो अपने विषयों को बहुत गूढ़ तरीके से जानते हैं, और शायद वो जो बातें करते हैं हम जैसे सामान्य लोगों को वो बातें समझ में भी कम आएंगी। लेकिन हमने उनसे आग्रह भी यही किया कि वो बच्चों को ध्यान में रख करके बच्चों के अंदर वैज्ञानिक जिज्ञासा प्रेरित करने के दृष्टिकोण से, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के उद्देश्य से, और विज्ञान कितना मजेदार भी है, विज्ञान कितना जरूरी भी है, और विज्ञान कैसे उनके भविष्य निर्माण का रास्ता तय करता है, उस दृष्टिकोण से वो हमारे बच्चों को मार्गदर्शित करें, उनके माता पिता को मार्गदर्शित करें। ये आज के कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है। तो इसी प्रोसेस में मैं चाहता हूं कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर HS शर्मा से करूं। हमारे जो तीनों गेस्ट में मैं डॉक्टर HS शर्मा से शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर HS शर्मा वैसे तो न्यूक्लियर साइंस के एक्सपर्ट हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट रहे हैं, पर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक वो अपना वैज्ञानिक अनुभव के माध्यम से बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करें।
अब इस प्रकरण में मेरा एक सवाल है, हम क्या करें कि कुछ सवालों के साथ शुरुआत करते हैं जो सवाल समाज के बीच में है। तो मैं इस सवाल का उत्तर मैं डॉक्टर एच.एस. शर्मा से लेना चाह रहा हूँ कि उसी के माध्यम से वो हमको गाइड भी कर दे कि अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में आज भी वैज्ञानिक बातें गैर वैज्ञानिक तरीकों से समझाई जाती हैं। आज बहुत सारी बातें हमसे कहा जाता है ये करा करो और ये मत करा करो बच्चों, लेकिन जब बच्चे उनके कारण पूछते हैं कि ऐसा मैं क्यों ना करूं, तो जब उनको माता पिता के द्वारा या दादा दादी के द्वारा या समाज के अन्य लोगों के द्वारा उनको कारण दिए जाते हैं, तो उनकी वो बातें तो वैज्ञानिक है जिसलिए उन्हें रोका गया है ऐसा करने से, लेकिन जो उनको कारण बताए जाते हैं वो कई बार गैर वैज्ञानिक कारण भारत में ज्यादा प्रचलित होते हैं कि ये मत करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इसके बाद ये नहीं खाना चाहिए, इस समय सो जाओ, इस समय उठ जाओ, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन उनके जो कारण दिए जाते हैं वो कारण गैर वैज्ञानिक कारण ज्यादा दिए जाते हैं। तो मैं इसी सवाल के साथ डॉक्टर एच.एस. शर्मा से बात शुरू करना चाहता हूं कि कैसे अगर हम कारण हमारे गैर वैज्ञानिक होंगे और उसके माध्यम से वैज्ञानिक बातें समझाना चाहेंगे बच्चों को, तो कैसे उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम क्या करें, फिर क्या सही तरीका हो बच्चों को अपनी बातें समझाने का, वैज्ञानिक बातें समझाने का। तो मैं डॉक्टर एच.एस. शर्मा से आग्रह करूंगा कि इसके साथ वो अपनी बात को अगर कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर एच.एस. शर्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ। अभिषेक जी, बहुत बहुत आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, जो आपने इतना अच्छा प्रयास किया है। और कहने को हमने बहुत ऐसे अवसर नहीं देखते हैं कि जिन पर इस तरीके की बातचीत हुई हो, लेकिन मैं कुछ कोशिश करता हूँ। और मुझे हमारे जो श्रोतागण हैं या जो बातचीत सुन रहे हैं उनसे यही सबसे पहला उनको एक मोटिवेशन, खासतौर से बच्चों को और बच्चों से जो थोड़े और बड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए ये है कि पहले तो आज के संदर्भ में वो ये को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी या किसी भी देश के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए और बहुत अच्छे विकास के लिए हमें विज्ञान को मानस से और हमारे दैनिक जीवन से हमें उसे जोड़ना है। और इसी दिशा में ये सब प्रयास तो करने हैं। अभी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। तो मैंने एमटी यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक विषय पढ़ा और उसमें मुझे अर्थ एटमॉस्फेयर या अर्थ एनवायरनमेंट को पढ़ाने का अवसर मिला। वो न्यूक्लियर साइंसेज के कॉन्टेक्स्ट में था। उसमें मुझे ये समझने के लिए बातें मिली कि देखिए जो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ का, उसमें करीब 79% नाइट्रोजन है और लगभग 21% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है और बाकी सभी गैसेज जो हैं वो 1%। तो अभी प्रश्न आता है कि ये जो हमारी सृष्टि की रचना हुई है, इस सृष्टि की रचना में ये जो बेसिक एलिमेंट हमारा ब्रह्मांड का जब बना हुआ तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये आए। और इसमें कब धरा पे जीवन आया और या कब हमारा जीवन जो समुद्र के अंदर आया, इसको समझना बहुत छोटे रूप में बहुत आवश्यक है। तो एक तो ये विषय है बच्चों के लिए कि मैं ये कहूँगा कि ये इस तरीके का पाठ्यक्रम और इस तरीके की चीजें बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे पहले उपलब्ध हो। एक तो ये कहना है, एक विषय मेरा ये कहना है कि बच्चे, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत महत्व है और जो भी समस्या आ रही है, चाहे कोविड की समस्या आ रही है या पोल्यूशन की समस्या आ रही है, वो हमारे एनवायरनमेंट या हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। अब मैं आपका ध्यान एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ और जो है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है बच्चों को, जो खासतौर से छोटी क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में और 8th क्लास के नीचे भी हमें कुछ ऐसे रिसोर्स लाने चाहिए कि जो बहुत साधारण तरीके से समझ होती है। और उनके करने के बाद जैसा अभिषेक जी ने बताया कि हमारे बुजुर्गों में बहुत सारी बातें बताते रहे हैं, उन बातों को महत्व से प्रयोगिक तरीके से उनको
सके, वेरीफाई कर सके, एस्टिमेट कर सके कि ये बातें जो कही जा रही हैं ये इस तरीके से उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण में समझा जा सकता है। और ये अभी मैं एक छोटी सी बात है आपके सामने रखता हूँ कि हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन बहुत होता है। और वैसे आप देखिए तो हमारी जो शुगर है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसको चीनी कहते हैं, वो गन्ने के माध्यम से आती है। हाँ, मेरा ये एक प्रश्न आपसे बताने की कोशिश की कि क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की कि जब गन्ना होने के बाद और जब उसमें रस आने लगता है तो किस मंथ में मौसम के हिसाब से सितंबर अक्टूबर से लेकर और मार्च अप्रैल तक जब तक गन्ना रहता है हमारे स्टेट में, उसमें जो हमारी शुगर है जो भी है वो कितनी